పండిత మండిత సర్వే మాగంటో ఉపస్థితి ఆయన మనకి కౌంటి గారు చెప్పారు. అక్కడ భోజనాలే భోగతే అనమాట, అక్కడ ఉంది మాగంటం ఉపస్థితి అని ఇక్కడ మార్చారు దాని పేరే. నిన్న కూడా కొంతమంది చెప్పారు మాగంట సుబ్రహ్మణ్యం గారి గురించి ఆంధ్ర భోజనుడు దీనికి బిరుదిద్దామని వాళ్ళతో కూడా అనుకున్నారు. అది శతపథి గారు ఇస్తే బాగుంటుందని మేమంతా అనుకుంటున్నాం. అసలు ఆంధ్ర భోజనానికి కీర్తి ఏదేశం పూర్వదినే ప్రస్తావిత ఆసీత్ మహాభాగా శృణ్వంతు शतपथ महाभागा पूर्वदिने तादृश कीर्तिः सञ्जाता एतेषां तद् मुखादिभिः भविष्यति, अस्माकं सर्वेषामपि आनन्दो भविष्यति। तर्हि भवद्भिः प्रतिपाद्यः विषयः पंचधारा सदाधारा सदानन्दा सरस्वती पंडिता मंडिता सर्वे मागण्टो उपस्थिति इति कृत्वा तदनुसारेण एकवारम् आन्ध्रभोजाः महाभागाः एकण्ठ सुब्रह्मण्यभागिनः इति भवद्भिरुचितम् एकवारम् अस्माकं सम्प्रति मागन्ति सुब्रह्मण्यं महोदयाः ते मागन्ति सुब्रह्मण्यं महोदयाः न भवन्ति, तेषाम् अनुकम्पया तेषु उपस्थितेषु ततः वयं सर्वे मण्डिताः अद्य विजयवाटिका नगरी सदा मण्डिता पंडिताः मण्डिताः सर्वे, अतः ते आन्ध्रभोजाः भवन्ति। తర్వాత మాట్లాడుతూ వారు దుర్గా క్షేత్రం ఈ క్షేత్రాన్ని గురించి చాలా ప్రశంసించారు. సాక్షాత్తు శక్తి స్వరూపిణైనటువంటి దుర్గ ఇక్కడ సన్నిధానంలో ఉంది. పరమ పవిత్రమైనటువంటి కృష్ణానదీ తీరం. ఏదైనా ఒకప్పుడు మనకి ఏదైనా కొంచెం విశ్రాంతి కావాలి, లేకపోతే మనసుకు ఒక స్వాస్థ్యం కావాలి, చికాకులో ఉన్నాము అని అనుకుంటే వేదనాల వల్ల మనసుకి శాంతి పొందుతాం. కాబట్టి మనం విజయవాడకి వెళ్ళిపోతే మాగంట సుబ్రహ్మణ్యం గారికి వెళ్ళిపోతే మనకి విశ్రాంతి పొందుతుంది అనుకుంటుంటారు కదా. అలాంటి భావం పరిపూర్ణంగా వారిలో పడిపోయింది. ఇంతకుముందు కూడా ఒకటి రెండు సార్లు మా సభకు వచ్చారు. వచ్చినప్పుడు కూడా అలాంటి ఆనందాన్ని అనుభవించాలని సంగతి తెలిసింది. తర్వాత ఎక్కువగా కృష్ణమండలి వేద ప్రవర్తన సభ ఇది చేసేటటువంటి ఒక వేద అభివృద్ధి కార్యక్రమం అది ఇప్పుడు సుమారుగా 65 సంవత్సరాలు దాటిపోయి సుమారుగా 70 సంవత్సరాలు ఉంటుంది. సప్తతి వయస్సు ఆ సభకు వచ్చినప్పుడే అప్పటి నుంచి అవిచ్ఛిన్నంగా ఎంతమంది విద్యార్థులు ఎంతమంది విద్వాంసులు తయారు చేసింది అంటే ఇంకా ఆ సభా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించేటువంటి వాళ్ళే చెప్పాలి, నాకు అంతగా తెలియదు. అలాంటి అంతమందిని లోకంలో పంపించినటువంటి కీర్తి ఆ సభకే వచ్చింది అని చాలా గొప్పగా ప్రశంసించారు. ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడికి పరమాచార్య వారు వస్తుంటుంటారు. కానీ కాంపౌండ్ పీఠాధీశ్వరుడు వారి గణేశ్వర సత్యది గారి పరమాచార్య వారు అంటే కాంపౌండ్ పీఠం మహాభక్తి వారే ఈ ప్రతిష్ఠ కూడా చేసి చంద్రకోటేశ్వర స్వామి ప్రతిష్ఠ చేసింది వారి పరమాచార్య వారి ఇక్కడ. అలాగే జయేంద్ర సరస్వతి స్వామి గారు కూడా ఎప్పుడు వస్తుంటారు. శంకర జయేంద్ర సరస్వతి స్వామి గారు వారు ఉండమంటున్నారు. ఈ భారత భూమి ఇదంతా కూడా భారతదేశం, భారత భూమి, భారతం అనుకుంటాం మనం. ఈ భారతాన్ని వైదికం భారతం అనేటటువంటి మాట మాట్లాడితే బాగుంటుంది అని అనిపిస్తుంది నాకు. అలాంటి స్థితిని ఈ విజయవాడ అలాంటి స్థితిని తీసుకొచ్చారు. భారతదేశానికి అతనికి కూడా వైదికత్వాన్ని సంపాదించే కీర్తి విజయవాడలో ఉంది అని దాన్ని చాలా గొప్పగా ప్రశంసించారు ఆయన. తర్వాత ఇంకా మాట్లాడుతూ ఈ విజయవాడలో వచ్చినప్పుడు మధువాతాయిలో మంత్రం కూడా చెప్పారు. మధువాతాయితే మధుక్షరంత చింతవ మాధుర్న సంతోషసి మధునత్తముతోషసి మధుమత్వార్తిమోరజ మధుజ్యూరస్తమపిత మధుమార్లో మధుమార్గమస్తు సూర్య మాధీర్గామో భవంతున అని మన ప్రార్థన. సర్వం మధు ముద్రాధిపతే అఖిలం మధు అని చెప్పుకుంటుంటారు కృష్ణ పరమాత్మ గురించి. బృందావనంలో అక్కడ పాడుతుంటారు. ఇప్పుడు కూడా దేశ దేశాల్లో కూడా ఆ కాలం జరుగుతూ ఉంటుంటుంది. ఇక్కడ కూడా అలాంటి మధు అనేటటువంటిది అన్నిటికంటే గొప్పది, చాలా గొప్ప మధు భావిస్తుంటుంటారు. అలాంటి మధు వేదంలోంచి వచ్చినటువంటి సారాంశం అన్నమాట, అమృతం అన్నమాట. అది ఎప్పుడు కూడా ఉంటుంటుంది.
ఈ మంత్రంలో ఎన్ని విషయాలు ఇక్కడ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా విజయవాడలో ఉంటుంటాయి అనే విషయాన్ని వారు పరిపూర్ణంగా తెలియజేస్తున్నారు. ఇంకా మాట్లాడుతూ ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి రూపకిషోర్ మిశ్ర ఆయన ప్రస్తుతం ఈ ఉజ్జయిని మహర్షి రాజనీతి రాజకీయ సంస్థ విద్యా ప్రస్థానానికి ఆయన కార్యదర్శిగా ఉంది. మరి ఇలాంటి కార్యక్రమానికి వారు ఊదరించి వారి యొక్క సహకార సంపద లేకపోయినట్లయితే ఈ కార్యక్రమం జరగదు కదా. ఇలా దేశంలో అనేక చోట్ల కూడా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు జరిపించడానికి వారు చాలా సహకరిస్తున్నారు అని వారి యొక్క ఔదార్యాన్ని గొప్పగా వారు చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడ. అట్లాగా ఇంకా మన శ్రీ కిషోర్ మిశ్ర గారు వారణాసి నుంచి వచ్చినటువంటి మహాత్ములు స్వామీజీ ఇలాంటి ప్రజల విద్వాంసులు వీరందరి యొక్క సమక్షంలో ఇలాంటి మహా గొప్ప సభ జరగడం వారు ఎంతో ఆనందోత్సాహంతో మాట్లాడారు. సమయాభావం చెందిన గొప్ప అని చెప్పలేక సంగ్రహంగా ప్రధానమైనటువంటి అంశాలను వాళ్ళు మాత్రం మీకు అందించేసారు. తర్వాత కార్యక్రమాన్ని మన విష్ణుపట్ల చిన్నలక్ష్మీనారాయణ గణపతి ప్రకటిస్తాడు. गांधी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठानस्य कार्यदर्शिनः संदेशं भविष्यति. ओम यद्याविन्दते शतं भूमितस्य नत्वा अजं सहस्रं सूर्या अमदातमस्तु यो भूतं यो भव्यं सर्वं यश्चाद्यस्तं स्वर्गस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः. परम पूज्य स्वामी जी महाराज राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत परेड वे बड़े भाई प्रोफेसर हरे कृष्ण शतपथी जी, मेरे परम मित्र प्रोफेसर श्री किशोर मिश्र जी और इस समस्त आयोजन के पुरोधा जिन्होंने हम सभी को यहाँ पर एकत्रित किया, आदरणीय मगनती सुब्रमण्यम साहब, मेरे सामने विभिन्न स्थानों, संस्थाओं और प्रांतों से आए हुए समस्त वैदिक ग्रंथ, मुझे बहुत अच्छा यहाँ पर अनुभव हो रहा है. मैं बहुत ही सरल हिंदी भाषा बोलूँगा. अगर तेलुगु आती तो मैं तेलुगु बोलता, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे नहीं आती. मैं राष्ट्रभाषा में बहुत ही सरल शब्दों में आपके समक्ष में अपने विचारों को प्रस्तुत करता हूँ. विजयवाड़ा मेरा प्रथम आगमन है. आदरणीय मगनती साहब ने बहुत बार आग्रह किया कि आप एक बार जरूर पधारिए. आज वो शुभ अवसर मेरे समक्ष है. क्षेत्रीय वैदिक सम्मेलन जिसमें आप सभी लोग विभिन्न स्थानों से यहाँ पर पधारे हैं, इस समस्त उपक्रम के पीछे मगनती सुब्रमण्यम जी का एक बहुत बड़ा योगदान यहाँ पर दिखाई दिया. मेरी भी एक बहुत बड़ी इच्छा थी कि मैं विजयवाड़ा जाऊं. मगनती साहब हमारे जन्म बॉडी के फाइनेंस कमेटी के और गवर्निंग काउंसिल के ऑनरेबल मेंबर हैं. इनका मार्गदर्शन हमें समय समय पर बहुत ही मिलता रहता है. यही नहीं, आंध्र प्रदेश का आधिपत्य या ये आंध्र प्रदेश का एक नेतृत्व हमें मिल रहा है. राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के उन्नयन में हमारे मुख्य अध्यक्ष हैं, चेयरमैन साहब वो भी आंध्र प्रदेश के डॉक्टर एम राजू जी. उपाध्यक्ष हैं वे भी आंध्र प्रदेश से हैं, प्रोफेसर संविधान सुदर्शन शर्मा जी. तो इस तरह से देखा जाए आंध्र प्रदेश का योगदान राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के उन्नयन में बहुत ही आदरणीय है.
इस योगदान को पूरे देश में हम प्रसारित कर रहे हैं। आज देश में हमारी लगभग 400 साढ़े 400 संस्थाएं हैं और 25 राज्यों में है। इन सभी संस्थाओं में जब हम देखते हैं, दृष्टिपात करते हैं, तो आंध्र प्रदेश का जो एक योगदान है वो अब से नहीं, प्राचीन काल से वेद के उन्नयन में, वेद के संरक्षण में, संवर्धन में, प्रचार और प्रसारण में हमेशा बना हुआ है। जैसा कि आचार्य सतपति जी ने कहा कि वेदों के परम भाष्यकार, विश्व में शुद्ध वेदों के मनीषी आचार्य सायण भी आंध्र प्रदेश के थे। इतनी बड़ी सेवा आंध्र प्रदेश के द्वारा की गई और आज भी मैं पूरे देश में जाता हूं, लगभग सभी प्रांतों में गया हूं। जो प्रौढ़ विद्वान या जो प्रौढ़ता वेद के प्रति आंध्र प्रदेश में देखी गई है वो अन्यत्र कम मिलती है। इसलिए आंध्र प्रदेश का योगदान वेद के क्षेत्र में प्रारंभ से रहा है और इसके अग्रदूत या इसकी कहिए देवदूत स्वयं आप हैं। ऋग्वेद में स्वयं मंत्र कहता है अग्निम दूतम प्रणीमहे, कि हम ऐसे अग्निदूत का वर्णन करते हैं जो कैसा दूत है, जो वेद को या वेद की विचारधारा को, वेद के शिक्षा को, वेद की संस्कृति को, वेद की विद्या को आगे लेकर के चलता है। मैं उसे वेद की भाषा में दूत कहता हूं। और जितने भी वैदिक विद्वान हैं इनके लिए मैं अग्नि कहता हूं। और स्वयं ऋग्वेद ने कहा, प्रथम मंत्र में ही कहा, अग्निमीडे पुरोहितम। यद्यपि ये भगवान के लिए, परमात्मा के लिए वाचक है, लेकिन एक शब्द के, मंत्र के अनेक अर्थ हो सकते हैं। तो मैं उन सभी वैदिक विद्वानों को अग्नि मान करके चलता हूं जो समाज को, जो विद्या को, वेद की मनीषा को, वेद के ज्ञान को, वेद विद्या को, वेद की धरोहर को आगे लेकर के चलते हैं, वे ही अग्नि हैं। और उन्हीं को पुरोहित कहा है। पुरोहित का अभिप्राय यह है कि पुरोहितम ददाति, कि जो आगे लेकर के चलता है वही पुरोहित है। और यही अभिप्राय लगभग अग्नि का भी है। इसलिए अग्नि और पुरोहित दोनों पर्यायवाची शब्द कहें या विशेषण कहें एक दूसरे के, ये सभी जो वैदिक हैं ये अग्नि स्वरूप हैं, जो हमारे वेद के संरक्षण में हमेशा आगे रहते हैं। इन्होंने लाखों लाखों वर्षों से वेद की रक्षा की, इसलिए अग्नि है। और वेद इसलिए कहता है तो वयम राष्ट्र जागृयाम पुरोहिता, कि हम पुरोहित हैं। वेद के जो मनीषी विद्वान है वो पुरोहित है। और पुरोहित वो होता है जो हमेशा देश का, समाज का, परिवार का, राष्ट्र का, मानवता का हित आगे साथ करके चलता है और वेद की शिक्षा को, वेद की विद्या को चारों बखेरता हुआ चलता है, बताता हुआ चलता है। इसलिए वो वेद का जो विद्वान है वो अग्नि है, वही दूत है और वही पुरोहित। इतने बड़े सम्मान के शब्द, इतने बड़े सम्मानजनक पद के प्रयोग हमें वेदों में इन समस्त वैदिक विद्वानों के लिए मिलते हैं। आज आवश्यकता है वेद के संरक्षण की। भारत सरकार ने तो ये संस्था चलाई हुई है और इसके पीछे भी यदि इतिहास को हम देखें तो कांचीपुरम के परमाचार्य, जो वर्तमान में परम पूज्य जैन सरस्वती जी के गुरुदेव का बहुत बड़ा हाथ है, उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की प्रेरणा से राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान भारत सरकार की एक संस्था बनी और आज पूरे देश में वेदों का कार्य कर रही है। हमारा उद्देश्य है, राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान का एक परम लक्ष्य है कि पूरे देश में वेद की विचारधारा को, वेद के स्वरूप को, वेद विद्या को फैलाया जाए। सामान्य स्तर से लेकर विद्वानों तक पहुंचाया जाए, ये एक परम लक्ष्य राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान का है। और बिना किसी भेदभाव के है, बिना किसी जातवाद के है, प्रांतवाद के है, भाषावाद के है, क्योंकि वेद में कोई भाषा
और वो स्वयं में वेदवाद है। जो वेद के अनुसार चलता है वो वैदिक है और वो देश की मनीषा को आगे लेकर के चल रहा है। इसलिए राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान का एक बहुत बड़ा बहुआयामी एक लक्ष्य है कि सभी के लिए वेदों की शिक्षा का प्रचार और प्रसार करना, अवगत करा देना। ये मानवता का एक संविधान है। वेद संविधान है मानवता का। ये वेद अद्भुत ज्ञान है मानवीय धरोहर के संरक्षण का। इतनी बड़ी विपुल राशि का अधिपति ये वेद, जिसके अधिपति स्वयं आप हैं। इसलिए हमारी एक योजना है और वो ये योजना है कि मात्र वेदों को केवल संहिताओं को ही अध्ययन में न रखना, अपितु वेद के जो उपजीवी ग्रंथ हैं, चाहे ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक है, उपनिषद है, वेदांग है, उपवेद है, जितने भी शास्त्र हैं जिनके बोध के कारण से वेद के अर्थों तक पहुंचते हैं, उनके भी संरक्षण की, उनके भी पढ़ने और पढ़ाने की अत्यंत आवश्यकता है। बिना इसके संरक्षण होना नितांत असंभव है। इसलिए वेदांत की ओर जाना चाहते हैं। आचार्य साइंड ने चारों वेदों का भाष्य किया और भी ग्रंथों के भाष्य किए, लेकिन उनके बाद ये परंपरा क्षीण हुई। अब आकर के कुछ पिछले 1-2 शताब्दी पूर्व या 4-5 शताब्दी पूर्व कुछ वेदों के भाष्य हुए, लेकिन ये बहुत कम है। इसलिए आवश्यकता है वेद के विद्वानों की, उनके लिए एक बहुत बड़ी योजना धारण करनी होगी कि हमें वेदांग सहित वेदों को पढ़ने की आवश्यकता है। जब तक निरुक्त शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, कल्प शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र इत्यादि षडंगों का उल्लेख हमारे जो जीवन में आया हुआ है और इनका अध्ययन न हो, तब तक वेद पुरुष पूर्ण नहीं माना गया है। ये वेद पुरुष के अंग हैं और बिना अंग के जो अंगी है वो पूरी तरह से, जिसे कहते हैं, कंप्लीट नहीं माना जाता है। इसलिए हमने एक प्रावधान किया अपने सिलेबस में, अपने पाठ्यक्रम में नए तरीके से रिवाइज किया है कि इसमें ब्राह्मण ग्रंथों का भी, निघंटु का भी, निरुक्त का भी, शिक्षा ग्रंथों का भी उल्लेख हो और साथ में उनका अध्ययन और अध्यापन भी हो। यही लक्ष्य लेकर के पूरे देश की जितनी भी हमारी संस्थाएं चल रही हैं, हम इन बच्चों को अध्ययन अध्यापन में लगाए हुए हैं। इसके साथ ही एक बहुत बड़ी कल्पना है। अभी हमने सामान्य सभा में जो जनरल बॉडी है राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान की, उसमें एक कार्यक्रम रखा है, उसमें एक योजना रखी है कि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा भी हो, इसका हायर सेकेंडरी वैदिक एजुकेशन बोर्ड भी हो और हायर एजुकेशन का भी हो और साथ में रिसर्च का भी हो। ये तीनों बॉडी का जो एक एपेक्स बॉडी के अंतर्गत काम करेगी, उसका भी निर्णय लिया है और स्वयं इसका जोर शोर से जो मुद्दा उठाया हमारे आदरणीय प्रोफेसर सतपति जी ने उठाया था। तो हम ये चाहते हैं आगामी दिनों में राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान की पूरे देश में वेद के संरक्षण में एक बहुत बड़ी भूमिका होगी और इस भूमिका को हम जन सामान्य तक पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए जितना भी कैरिकुलम हमारा है, जितना भी सिलेबस हमारा है, हम उसको पूर्णता की ओर ले जाना चाहते हैं। सही मायने में संरक्षण वेदों का हो, इसको लक्ष्य करके हम आगे चल रहे हैं। ये तो एक योजना है विद्यालय में, लेकिन इसके अलावा जिन्होंने वेद नहीं पढ़े, सामान्य लोग ऐसे भी हैं, उनके लिए भी योजना है और वो योजना है घर बैठे वेदों की शिक्षा। राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान इस बात का पूरी तरह से जिम्मेदारी लेता है या जिनको वेदों की शिक्षा का बोध नहीं है, वो राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उनके घर तक थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस हम वेद को उनके घर तक पहुंचाने का बीड़ा उठाते हैं। आज
आवश्यकता इस बात की भी है कि पूरे देश में जो जैसा माहौल आज बना हुआ है, अगर इसके सही तरीके से सकारात्मक रूप से देश के और समाज के सुदृढ़ता के लिए अगर कोई शिक्षा लाई जा सकती है तो वो केवल वैदिक शिक्षा है, जिसका उल्लेख प्रोफेसर सतपथी जी ने अपने ओजस्वी व्याख्यान में बड़े सुंदर तरीके से किया था। हम भी वही लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं। छोटे बच्चों में वो संस्कार जमा देना चाहते हैं, क्योंकि बाल बोध में जो बाल अवस्था में जो संस्कार वेदों के जमाए जा सकते हैं वो बड़ी अवस्था में उतने संभव नहीं हो पाते हैं। इसलिए हमारा यह लक्ष्य है कि देश में जहाँ जहाँ भी संस्थाएं नहीं हैं वहाँ भी हम संस्थाओं को पहुँचाने का या स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी संस्थाएं तो फीस में बहुत कम थी, लेकिन आज की तिथि में हमने मणिपुर में खोला, हमने सिक्किम में खोला, हमने अरुणाचल में भी संस्था खोली, आसाम में कई चल रही है, त्रिपुरा में भी चल रही है, जिसका कि सम्मेलन अगले इसी मास हम सम्मेलन करने जा रहे हैं। गोवा में हमारी कोई भी संस्था नहीं थी। मैं आपको थोड़ा सा ये जरूर अवगत करा दूं कि जो भारतीय चिंतन और भारतीय संस्कृति का सबसे ज्यादा पोषक है, आमतौर पर ये धारणा है कि गोवा में पाश्चात्य संस्कृति का एक साक्षात नृत्य होता है। ऐसा नहीं है, वो बदनाम किया जा रहा है गोवा को। गोवा इतना धर्मिष्ठ राज्य है जहां पर सर्वाधिक धार्मिक विचारों के लोग रहते हैं, और जिस तरीके से वहां पर हमारी वेद की संस्थाएं प्रारंभ हुई है उसका एक बहुत बड़ा हमें सुफल प्राप्त हुआ है। यही नहीं, पूरे देश में जो हमारी घर बैठे वेदों की शिक्षा एक योजना है, सबसे ज्यादा अगर कोई सदस्य हमारे लिए है किसी भी प्रांत के, वो छोटा सा प्रांत जरूर है गोवा, लेकिन सर्वाधिक हमारे वेद की शिक्षा को ग्रहण करने वाले गोवा प्रांत में है। ऐसे ही हम कन्याकुमारी भी जा रहे हैं और दूसरे प्रांत में हम पंजाब में नहीं थे, वहां भी हम प्रयास कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कोई भी संस्था नहीं थी। 2 साल पहले महाराजा कर्ण सिंह के पिता दादाजी के नाम से, और उन्होंने हम दोनों ने मिलकर के वहां पर उद्घाटन किया। श्रीनगर जैसी जगह जहां पर वेद की ध्वनि उच्चारण करना एक दुर्लभ है, नामुमकिन सा लगता है, लेकिन पूज्य परमाचार्य कांची के आशीर्वाद के साथ श्रीनगर में भी हमने वहां पर 6 दिन का वैदिक सम्मेलन किया है। मैं समझता हूँ यहाँ पर कुछ वैदिक विद्वान होंगे जिन्होंने वहां जाकर के वेद घोष किया था। ऐसा ही नहीं है, कारगिल जहां पर देश में युद्ध हुआ, एक छद्म युद्ध फैलाया था पाकिस्तान ने, उसके खिलाफ भारत की सेना वीरता के साथ लड़ी, उनको खदेड़ के भगा दिया था। ऐसे कारगिल से पहले वहां पर भी जाकर के बहुत ही दुर्गम स्थल है जहां 40% ऑक्सीजन की कमी है, ऐसी स्थिति में भी जाकर हमारे वैदिक विद्वान 6 दिन जाकर के वेद घोष किया। कारगिल से पहले जहां पर बर्फ जमी रहती है, मैं समझता हूँ यहाँ पर कुछ एक आध कोई विद्वान होंगे जो गए हमने, लेकिन तमिलनाडु से बहुत गए थे, और मैं भी गया था जहाँ पर उद्घाटन किया हमने, और हमारे उपाध्यक्ष प्रोफेसर संधारण सुदर्शन शर्मा जी गए थे। भाई एक सुंदर वातावरण था, आर्मी के संरक्षण में हुआ, बौद्धों ने भी हिस्सा लिया, दूसरे लोगों ने भी हिस्सा लिया। इस प्रकार से हम केवल उन राज्यों में ही सीमित नहीं है जहाँ पर की वेद की संस्थाएं दिखाई देती है। राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है और संकल्प युक्त है कि उन राज्यों में भी जाना चाहता है जिन राज्यों में वेद का कोई नाम नहीं लेता। ये प्रयास राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान बखूबी कर रहा है। इसलिए मैं आप सभी विद्वानों से एक निवेदन करता हूं, और वो निवेदन यही नहीं है कि आपके कंठों तक ये विद्या रहे, ये विद्या आपके घर और परिवार में न रहे, अपितु ये विद्या पूरे देश में फैले। आज आवश्यकता इसकी है। जब इसका क्षीणता हुई तो नाना प्रकार के संप्रदाय इस देश में फैले,
जो आज बड़े बड़े मजहब के रूप में शक्ल ले चुके हैं। आज देश खंड खंड हो गया। कितना बड़ा भूभाग हमारा देश था। हम पाकिस्तान जो हमारा भूभाग था, जो अफगानिस्तान हमारा ही भूभाग था, हम इराक और ईरान तक भी फैले हुए थे। 19-20वीं शताब्दी तक हमारे मंदिर और गुरुद्वारे मिलते थे, लेकिन सब धराशायी हो गए, हमारे देखते देखते हो गए। क्यों हुआ? आज इस पर ये प्रश्न चिंतन करने की आवश्यकता है। हमें यही आवश्यकता नहीं है कि हम केवल मंदिरों में, आश्रमों में, मठों में बैठ कर वेद का उद्घोष करते हैं। हमें आवश्यकता है देश की सोचना है, कहीं आगे और ज्यादा खंड खंड न हो जाए और कहीं कोई हमारे वेद का नाम लेवा न हो। इसलिए इस परंपरा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं अपने सभी परमाचार्यों के चरणों में भी निवेदन करता हूं कि हमें अब जात पात से ऊपर उठकर, भाषावाद प्रांतवाद से ऊपर उठकर हमें काम करने की आवश्यकता है। हमें उस वेद की धारा में सभी सामान्य वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग के व्यक्ति को लाना है जो वेद को नाम तक नहीं जानता है। हमारे पास बहुत से आते हैं कि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान है, हमने कभी वेद देखे नहीं। आपके यहाँ वेद है क्या? ये कितनी विडंबना है। इस देश का ही व्यक्ति, इस समाज का व्यक्ति कहता है राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान नाम का संस्था आपका है, हमने कभी वेद देखे नहीं, हमने कभी नाम सुना है वेद का, क्या हमें वो दर्शन करा सकते हैं? ऐसी स्थिति इस देश के अंदर है। हम नॉर्थ ईस्ट में जाए, ऐसा भयावह दृश्य होता है कि वहां पर हम धोती कुर्ता में चले जाए, दूसरे प्रांतों में चले जाए, धोती कुर्ता में बैठ चले जाए, चोटी और जनेऊ रखे, तो लोग बहुत से हमको दूसरी दृष्टि देखते हैं, कहीं ये चिड़ियाघर से तो नहीं आ गए। ये क्यों हुई स्थितियां सब? हमें इस पर चिंतन की आवश्यकता है। मैं राष्ट्रीय चेतना की दृष्टि से विचार कर रहा हूं। वेद में राष्ट्रभक्ति का उल्लेख है, राष्ट्रगान का भी उल्लेख है, राष्ट्रीय योजनाएं भी हैं, राष्ट्रीय परियोजना भी है। आप ब्राह्मण मंत्र स्वयं राष्ट्रगान है वेद का, या तो हम लोगों ने स्वयं निर्मित किया राष्ट्रगान, लेकिन वो परमात्मा की ओर से राष्ट्रगान है। आप ब्राह्मणों ब्रह्म की जाएगा, तो इसको कौन गाने वाला होगा? आज हमें इसकी बचाने की आवश्यकता है। आपने लाखों वर्षों से अब तक इस धरोहर को बचा के रखा है। एक दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। लोग कहते हैं कि साहब ताजमहल दुनिया का बहुत बड़ा आश्चर्य है, या पिरामिड बहुत बड़ा आश्चर्य है, या कोई मीनार है बहुत बड़ा आश्चर्य है। ये सब बिल्कुल मिथ्या है। ये धराशायी होने वाली चीजें हैं। ये भूकंपों में भी ढह सकती है, कोई भी दुर्दांत आक्रांत इनको उठा सकता है। लेकिन अगर सबसे बड़ा आश्चर्य इस दुनिया के अंदर कोई है, तो लाखों वर्षों से जो श्रुति परंपरा चली आ रही है, इसको जिस विद्वानों ने संरक्षण किया है, ये सबसे बड़ा आश्चर्य दुनिया का है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य। एक अक्षर की भी कोई मिलावट नहीं कर सका। रामायण में, महाभारत में लाखों श्लोकों की मिलावट हो गई। समय समय पर विद्वानों ने बहुत सारी संख्याएं बढ़ा दी, लेकिन आप विद्वान बैठे सब, क्या किसी ने एक अक्षर की हिम्मत की कि वेद में एक अक्षर भी आगे बढ़ा दे, घटा दे? क्यों? क्योंकि इसके पुरोधा आप हैं, क्योंकि इसके दूत आप हैं, क्योंकि इसके अग्निदूत आप हैं। मैं पहले ही आपसे एक प्रार्थना की थी, क्योंकि आपने जो संरक्षण किया है वो दुनिया की कोई भी धारा, कोई भी विधा नहीं कर सकती। जो एक विकृति पाठ और ये जो पाठों का आयोजन है, इससे ही परंपरा से आज हमारे पास सारे वेदों का संरक्षण हुआ है। हम धन्य हैं, हम कृतज्ञ हैं, ये राष्ट्र भी धन्य है आपके इसने बड़े योगदान से। लेकिन हमें अब यही भी विराम नहीं करना है, हमें सायण भी बनना है, हमें वेंकट माधव भी बनना है, हमें गीत बनना है, हमें उपज भी बनना है, हमें दयानंद भी बनना है, हमें पंडित साहब बोले का भी बनना है, और हमें टीकाकारी शास्त्री बनना है, और हमें आगे परमाचार्य ऐसे लोगों को भी बनना है। यही वेद की धारा को, वेद की विधा को, वेद की विद्या को, वेद की ज्ञान को चारों ओर फैलाने में जो अपना सर्वात्मक योगदान कर सकते हैं, इसकी आज अत्यंत आवश्यकता है। इन शब्दों के साथ
मैं आप सभी विद्वानों के दर्शन पाकर कृतकृत हुआ और सबसे बड़ा धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ अपने जनरल बॉडी के ऑनरेबल मेंबर और इस समस्त कार्यक्रम के परम आयोजक प्रोधा और हमारे उनके आदरणीय श्री मगंती सुब्रमण्यम साहब का, जिन्होंने मुझे भी इस धरती का दर्शन कराया। और मैं जब आ रहा था एयरपोर्ट से, मैं आपको सच बताऊं, मैं पूरे देश के बड़े बड़े शहरों को देखा है। चंडीगढ़ बड़ा सुंदर शहर है, पंचकुलाई बड़ा सुंदर शहर है, लेकिन पुराने वो नए शहर हैं, लेकिन पुराने शहर में विजयवाड़ा शहर इतना सुंदर, इतना क्लीन देखा मैंने, इतना सुंदर क्लीन कोई भी और पुराना शहर नहीं देखा। इसको देख करके मैं धन्यवाद पुनः से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम कार्यक्रम धन्यवादाः। यदा पर्यन्तं गङ्गाप्रवाहः एव तेषां सन्देशः सञ्जातः, इदानीं साङ्गस्वाध्यायभास्कराः राष्ट्रपतिसम्मानिताः अस्मत् गुरवः ये सन्ति, तेषां कुञ्चिकाभाषणं भविष्यति। पायं पायुदारदेशिककृपाधरा, पायं पायुदारदेशिककृपाधरा सुधारागिरां, गायं गायवशेषसद्गुरुयशो गाधा गाधाश्रियां, ध्यायो ध्यायमनन्दबोधककृपाज्ञापज्ञाश्रुतेः, हायं हायं बोधं वयगुरोसेदं प्रबोधं सहायक सब्जी महाशय मेरिका अलंकृतवन्तः ये खानपीठ व्यासाश्रम पीठाधे अधिपतयः श्री गोविंद सरस्वती सरस्वती महाभागाः, आचार्य प्रभृति हरिकृष्ण सरस्वती महाभागाः क्षेत्रात् स्वागताः। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठात् तथा वाराणसी क्षेत्रात् बनारस हिंदू विश्वविद्यालयात् स्वागताः संस्कृत प्राचार्याः। महर्षि तान्त्रिकी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठानस्य कार्यदर्शि महोदयाः किशोर महाभागाः, सर्वेषां सगर्यं प्रणामान् समर्प्य सर्वेषाम् अत्र यथा सावधानं तथा तदपि प्रार्थये कुञ्चिकाभाषणदानकाले सर्वेषाम् अवबोधो यथा भविष्यति तदर्थम् अत्र राष्ट्रीय दक्षिण भारतदेशे प्रान्तीय वेद सम्मेलनम् अत्र अस्मिन् दिने प्रक्रान्तार्थं दिनत्रयपर्यन्तम् इयं सभा प्रतिष्ठिति इति आह्वानपत्रिकासु प्रकटितो विषयः। परमपवित्रकृष्णाः अत्र सङ्ग्रहरूपेण पठनमात्रेण क्रियते, विवरणाय अवकाशो नास्ति इत्यहं मन्ये। कालविलम्बः सञ्जातः, सर्वे जगुषवः बुभुक्षिताश्च इत्येवं रूपेण परमपवित्रकृष्णामहानदीतीरस्थ विजयवाटिका विजयेश्वर दुर्गा महाक्षेत्रे श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य जगद्गुरु श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वर श्रीमद् जयेन्द्र सरस्वती श्रीचरणाः अधुना स्मर्यन्ते। तेषाम् अत्र उपस्थितिः पूर्वम् अस्माभिः सम्भाविता। अस्माकम् अधुना तु उपस्थितिर्मलध्येति स्मरणमात्रेण सन्तुष्टाः वयं। तेषाम् आरोग्यं सम्पूर्णतया भवतु इत्यपि अस्माकं भगवत्प्रार्थना किञ्चिदस्माभिः। परं श्री कामकोटिपीठस्थ श्री चन्द्रमौळीश्वर श्री वेङ्कटेश्वर स्वामिनां
दिव्य सन्निधाने विजय संवत्सर फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी